धीर प्रमाद भवति तदमो लहंती। रूप गोसाई पाद कहते हैं सात कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या। तो भगवान के सात कृष्ण नाम चरितादि, भगवान श्री कृष्ण के नाम, चरित्र, गुण, लीला, सिताप विद्या बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो रूप गोसाई कहते हैं जब मैं कृष्ण शब्द का उच्चारण करता हूँ, कृष्ण, I don't know how much sweetness, how much nectar is there in this two syllable Krishna. तो कृष्ण शब्द का अर्थ है अनलिमिटेड प्लेजर। कृष्ण शब्द का अर्थ है कि हु इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड हु इज द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड प्लेजर। तो कृष्ण, all another meaning of Krishna is all attractive, because he is the origin of all six opulence, so he possesses all six opulence। तो इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षति इति कृष्ण, जो सर्वाकर्षक है, सबसे आकर्षणीय है और इसलिए सबसे मधुर है। कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला, कृष्ण के चरित्र, कृष्ण के नाम सब बहुत ही मधुर है और वो एक से दूसरे से अभिन्न है। कृष्ण की नाम, कृष्ण की रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण की गुण अभिन्न है। कृष्ण के नाम में कृष्ण संपूर्ण रूप से वर्तमान है और कृष्ण उनके नाम पे सारे शक्ति अर्पित किए हैं। तो रूप गोसाई पाद कहते हैं जब मैं कृष्ण नाम उच्चारण करता हूँ तो हमें पता नहीं इस दो शब्द में कितना मधुर है, कितना अमृत है। तो और इसीलिए मैं जब भगवान के नाम मेरे जीवा में उच्चारण करता हूँ, मेरे को लगता है कब मेरे को हजार हजार जीवा होगा कि मैं उस जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा। और भगवान के नाम इतना मधुर है जब मेरे कर्ण रंध्र से प्रवेश करते हैं, when it enter into the ear hole, so I experience so much sweetness, so much nectar in my ear. In my ear, I desire millions of years. I desire that when I develop millions of years, so that I can hear the holy name more and more. So he was feeling that the one ear is insufficient to hear the holy name. And when the holy name enter into the courtyard of my heart, it gives so much bliss, so much nectar, so much joy, so much happiness, so much satisfaction. And my realization of my relationship with Krishna, it stop all other mundane activity and thoughts of my existence. So thus Krishna completely possesses, Krishna completely took over my whole activity. So thus Krishna is so attractive, so sweet. It gives full nectar, anandam buddhivardhanam, pati padam purnamrita aswadanam. In every step, the happiness increases, every step the joy increases, the sweetness increases. So this holy name is so sweet, it is unlimited sweet. When one chant the holy name, the sweetness increases and so completely satisfied because his hankering increases to taste the holy name more and more, to experience the joy of Krishna's holy name more and more. So thus Krishna is unlimited, his glories, sweetness, ever increasing, and therefore the devotion and love for Krishna by chanting the holy name, and all this Krishna's quality is present in the holy name. And holy name is not some sound vibration, it's Krishna himself. So this is the original glory, this is the reality of chanting the Hare Krishna Mahamantra. So therefore a devotee who want to advance in Krishna consciousness, a sincere devotee try to relish that nectar of chanting. Try to
experience that sweetness of chanting of Krishna consciousness. So now, question is, if chanting is so sweet, why we are not experiencing currently? We are chanting. Sometimes we like to chant, sometimes we do not like to chant, and sometimes chanting become mechanical. Why it is happening if chanting is holy name is so sweet, as it is explained by the great acharyas and the scripture itself? So the reason is Sat Krishna Nama Charitadi Sitap Vidya पित्त पतप्त रसनस नारो चिकानो। पित्त पतप्त, जब किसी का पित्त रोग होता है, मतलब जॉन्डिस होता है, तो जब व्यक्ति का किसी का जॉन्डिस होता है तब क्या होता है, न रुचि कानो, उसको रुचि नहीं उत्पन्न होता है मिश्री में। तो मिश्री बहुत ही मीठा है, लेकिन जिनको जॉन्डिस हुआ है उनको पता है कि जब जॉन्डिस होता है तो मिश्री बहुत मीठा होने के बाद भी उनको तीता लगता है। तो मिश्री तो मीठा है लेकिन उनको तीता लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनको बीमारी है। तो मिश्री का कोई गलती नहीं है, मिश्री इज स्वीट। मेरे को 2 बार जॉन्डिस हुआ था और बचपन में मेरे को पता था कि उस समय कितना तीता, सब कुछ तीता 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 तीता। तो डॉक्टर ने दवाई दिया था कि आप मिठाई खाइए, आप मिश्री खाइए, गन्ने का जूस खाइए। तो उसमें आपका क्या बोलते हैं, आपका बीमारी चला जाएगा और गन्ने का जूस जो है मीठा लगने लगेगा। तो सात कृष्ण नाम चरितादि सीतापो विद्या पित्त पतप्त रसनस नौरोचिकानु। तो ये अविद्या को, अज्ञान को, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, फॉरगेटफुलनेस ऑफ और ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन के जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जो हमारे असली परिचय, इसको अविद्या कहते हैं। कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, शाश्वत संबंध जो है, उसको भूल जाना और शरीर के साथ रिलेटेड जो भी चीज है और भगवान के सृष्टि के जो भी चीज है, हमारे भोग के वस्तु समझना, ये अविद्या है। और इस अविद्या के कारण हमें हरिनाम स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। जिसका पित्त रोग, जॉन्डिस होता है, उसको गन्ने का जूस या मिठाई नहीं लगता है। तो हम लोग जब बिगिनिंग में चैंटिंग कर, तो उसका जब अच्छा नहीं लगने का कारण है कि हमें बीमारी है, अविद्या, स्पिरिचुअल डिजीज। तो देन व्हाट इज द रेमेडी? किंतु आदरात् अनुदिना वजुष्ठा स्वाद्भीर क्रमाद् भवति तद्गद मूलहन्ति। तो किंतु आदरात्, लेकिन अगर आदर के साथ, आदरात्, भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, मैं भगवान के नित्य दास हूं, तो इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ कि कृष्ण के नाम स्वयं भगवान है, मैं कृष्ण के नित्य दास हूं, ज्ञान और सेवा। कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है? कृष्ण भोक्ता है, प्रभु है, और मैं कृष्ण की दास हूं, सेवक हूं, मैं आत्मा हूं, सब कुछ कृष्ण की है। तो ये है संबंध, और संबंध के साथ आता है सेवा। तो हम जब जप करते तो सेवा भावना से जप करना चाहिए। संबंध ज्ञान को याद रखना चाहिए, भगवान के नाम किस प्रकार भगवान से अभिन्न है ये याद रखना चाहिए, और सेवा भावना से, कृष्ण प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण। हे कृष्ण, हे राम, हे राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर सेल्फलेस, योर कॉस्टलेस डिवोशनल सर्विस। तो इस भावना से हमें जप करना चाहिए। एटीट्यूड शुड बी प्रॉपर। सो अटेंशन एंड एटीट्यूड, दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चैंटिंग। वी शुड बी चैंटिंग अटेंटिवली, हियरिंग द मंत्र, एंड वी शुड चैंट विद द एटीट्यूड ऑफ सर्विस। तो इस प्रकार के साथ जप करते, किंतु आदरात अनुदिनात, एवरी डे। इज नॉट लाइक दैट यू चैंटेड 1 वीक एंड देन उसके बाद बंद। ऐसे नहीं कि आज आपने 40 माला जप किया, कल कोई जप नहीं, या आज आपने 16 माला किया, कल 2 माला। सो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड ऑफ चैंटिंग। किंतु आदरात अनुदिनात फलु सैव जुष्टा स्वाद्भीर क्रमात् भवति। इस प्रकार के आदर के साथ अनुदिनात, एवरी डे, सम स्टैंडर्ड राउंड, स्पेशली 16 राउंड Prabhupada says. So gradually, if somebody is not chanting 16 round, he should come to the 16 round. तो किंतु आदरात अनुदिनात खलु सैव जुष्टा, तो फिर क्या होता है ना, स्वादभीर क्रमात् भवति। तो क्रमात् मतलब धीरे धीरे, स्वादभीर, स्वाद उत्पन्न होता है। जो हरे कृष्ण है वो मीठा
मिठास का अनुभव होने लगता है, अविद्या काटने लगता है। तद्गद मूल हंती, अविद्या जो मूल, अविद्या के जो जड़ है हमारे हृदय में, धीरे धीरे निर्मूल हो जाता है, धीरे धीरे साफ हो जाता है। और हमारे ओरिजिनल कृष्ण भक्ति जो हमारे हृदय में ऑलरेडी है, अभी ढका हुआ है, काम क्रोध अलग अलग अविद्या के द्वारा ढका हुआ है। तो जब हरिनाम का श्रवण किया जाता है, हरिनाम का उच्चारण किया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अविद्या कट जाते हैं और स्वाद उत्पन्न होता है। और एक भक्त को, जो सिंसियर भक्त, जो भगवान के भक्ति, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते, हरिनाम के मिठास का अनुभव होने लगता है। हरिनाम जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद का अनुभव हो रहा है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला उनके हृदय में, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। भगवान नाम के रूप प्रकट हो जाते हैं और उनके जीवा में नृत्य करने लगते हैं और उस भक्तों को उस दिव्य आनंद का आस्वादन कराते हैं। और वो भक्त भगवान के नाम उच्चारण करके, जप करके दिव्य प्रेम में, आनंद में मग्न हो जाता है। तो हमें उस आनंद का तलाश है, हमें उस आनंद को प्राप्त करना है। अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें उस प्रकार अनुदिनात भगवान के नाम का जप करना चाहिए, आदर के साथ जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे उतना बीमारी कट जाएगा। जितना मिश्री ज्यादा लेंगे, जितना गाने का जो ज्यादा पिएंगे, उतना ही जॉन्डिस रोग चला जाएगा। तो इसलिए आज बहुत ज्यादा अच्छा दिन है, एकादशी के दिन, when you can chant more and more. So if you chant more and more every day, you will start experiencing that taste of holy name. श्री हरिराम प्रभु की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, हरे कृष्ण महा। तो आज एकादशी है, बहुत विशेष दिन है। तो आज आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हम लोग चर्चा किए हैं अपने जीवन में, आदर के साथ अनुदिनात। और आज बहुत ही विशेष दिन है जिसमें आप इस मतलब एकादशी में ज्यादा भगवान की कृपा उपस्थित है। एकादशी माधव तिथि, और इसमें भक्ति प्राप्त होता है, भक्ति जननी। जतने पालन करी, बहुत जत्न के साथ पालन करना चाहिए। कृष्ण बोलते सततम कीर्तयन्तो माम जतन्तश्च दृढ़व्रता, सततम हमेशा कीर्तन करिए, नाम जप करिए। जतन्तश्च, जत्न के साथ, और दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ। मन चला जाएगा उसको वापस लाइए और फिर भगवान के नाम जप करने में दीजिए, भगवान के नाम से। तो अभी हम लोग 650 है, 740 तक हम लोग चैंटिंग करेंगे। ओके, सो ऑल डिवोटीज प्लीज चैंट अटेंटिवली। कोई बात, अनम्यूट करके जप कर सकते हैं। इफ यू आर सराउंडेड विथ लॉट ऑफ नॉइज, देन यू कैन ओनली म्यूट, अदरवाइज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी कैन चैंट टुगेदर। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।